Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we see introduction of GNU Linux and see what are the graphical user interface, command line interface, and various commands of Linux. Okay, so in last video we see about what are categories of software, computer software utilities, which are two types of software, that is application and system software, and see various type of operating systems, uh, and also see the phone operating systems. So in this video we start introduction to GNU Linux. So let's start. GNU Linux. GNU is not a Unix. First thing is that GNU is not Unix. It is not defined from or it not derived from Unix. पहले पढ़ लेते क्या है. GNU Linux is a family of operating system that created by various companies, organizations, and individuals. It is created by free software philosophies. This means that GNU Linux operating system are usually free of charge, free to distribute, and they are open source. Open source is when a person can view and modify the code of a piece of software. This is the important because by having the ability to look and audit the code, user can be sure that the program does not perform malicious tasks. It also allows the user to program their own features or fix problems and help the developers. This results in higher quality code and more secure programs. This is why GNU Linux is used to predominantly backbone of the internet. Most websites that user visits run on GNU Linux. In fact, in as of the 2018, all the world's fastest 500 computers run on Linux. Ubuntu is one of the most popular GNU Linux distribution. So देखिए क्या था कि एक एक साइंटिस्ट थे, राइट. नेम मैं आपको बता देता हूँ, रिचर्ड स्टालमन, राइट. रिचर्ड स्टालमन, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जेएनयू. अब जेएनयू जो है ये एक प्रोजेक्ट है, राइट. बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट था आईटी का, जिसके अंडर वेरियस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ओपन सोर्स मतलब फ्री टू यूज एंड फ्री टू मॉडिफाई. मतलब जो भी ऑथर है उसका कोई ऑथर नहीं रहता है, राइट. उसका कोई ऑथर नहीं रहता है, कोई भी उसे मॉडिफाई कर सकता है अपने अपने उसे लगता है जो भी उसका रिसर्च होगा उसके रिसर्च करके उस पर उसे मॉडिफाई कर सकता है. एंड देन इट इज़ easily available, free of charge, and we don't have to pay any of cost for that. And it have various it is open source, so that it have various functionalities to run operating these things. सो जीएनयू के अंडर बहुत सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किए, राइट. एंड उसमें एक उनका प्रोजेक्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम पे. जेएनयू के प्रोजेक्ट में ही एक उनका पार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. अभी उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो क्रिएट किए, बट इट हैव रन ऑन ए वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. सो दैट इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम. बिकॉज क्या होता है कि अगर मशीन से हमें इंटरेक्ट करना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू ही इंटरेक्ट करना होगा, राइट. सो दैट्स वाई operating system is the main project on their JNU projects. So उन्होंने एक JNU के अंडर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द लिनक्स, which is also the free of charge, free to distribute, and open source software. Okay. So अभी क्या होता है कि आज के इरा में, इन 2018 बोल सकते हैं, 2019, 20 अप टू 20, आज के इरा में जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी वेबसाइट है, या फिर इंटरनेट की यूजेबिलिटी, जब भी हम बात करते हैं इंटरनेट की स्पीड, या फिर उसे किसी भी सिस्टम को फास्ट, किसी भी फास्टेस्ट, कोई भी फास्ट कंप्यूटर की बात करते हैं, सो दे यूज लिनक्स,
generally, and Ubuntu is the most popular GNU Linux distribution. Okay, so यही है GNU Linux. Okay, so we see with two types of interaction with this system. That is two type of interaction is what, which are they? One is the graphical user interface and the second is the CLI, that is command line interface, right? अब दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, जैसे कि हम देखें विंडोज में हम इंटरेक्ट करते हैं, राइट? सो दैट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एंड वेन एवर वी यूज डॉस, मैंने आपको बताया था डॉस, जैसे डॉस पे अगर हम कोई कमांड, जैसे देखिए ये जो है, अब मेरा जो सिस्टम है इसमें दोनों है, कमांड लाइन भी है और ग्राफिकल यूज़र भी. अभी ग्राफिकल यूज़र तो आप देख ही रहे, जैसे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ. देन अब मैं आपको कमांड लाइन दिखा देता हूँ. जैसे कि देखिए ये एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया. अब मैं इससे भी ऑपरेट कर सकता हूँ मेरे सिस्टम को, राइट? जैसे कि मुझे किसी जैसे कि अभी इस फाइल में की कोई डायरेक्टरीज मुझे देखनी है, राइट? सो मैं यहाँ पे सिंपल एक कमांड टाइप करूँगा, dir and then enter. So it show me various type of directories. Again one command is there, that is tree. So it show me अब ये जो एक कमांड है ट्री करके, उसमें क्या है कि उसमें मुझे हर इसमें कौन कौन से फाइल्स है सब दिखा देता है, राइट? सी, ठीक है. सो अभी ये तो बहुत बड़ा कोड रन करेगा वो, राइट? सो आई स्टॉप दैट CMD. ओके, सो आवर नेक्स्ट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा उसे. The graphical user interface is when the computer interact with the computer using images, icons, and dialog boxes, right? Okay, the GUI is called the genome. There is a lot of GUI or desktop environment that user can install, but this is the default. The left bar called the panel, and there is a shortcuts to the programs as well as the currently open the program. The top bar has the date and time. If it is clicked, a menu will pop up with the calendar and notifications. हम वो फिगर्स देख लेंगे बाद में, ठीक है? एक मिनट शो ही कर देता हूँ मैं. दैट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. यहाँ पे देखिए ये एक पैनल रहेगा, राइट? अभी लिनक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, विंडोज़ की बात नहीं कर रहे, राइट? सो जनरली क्या होता है, लिनक्स में एक पैनल होता है, राइट पैनल, एंड इन टॉप ऑफ द दैट स्क्रीन, दैट डिस्प्ले, it show various menus like calendar, like volume button, all these things. And here is some icons are present on their left panel. Okay, so here is one panel is consist, ठीक है? So if it is clicked, a menu will pop up with the calendar and notifications, right? And the top right slide will show user to the battery information in the laptop, network information such as Wi-Fi and Ethernet, and options for logging in, restarting, shutdown computer at the bottom left. There is icon for the app menus. Clicking on it shows a list of all the apps installed on the computer. The search option is used for quick search of the applications, and the home folder is where all the personal documented settings are stored, and every user has their own होम फोल्डर. ओके, सो देखिए मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ. सो देखिए ये एक इंटरफेस है, राइट? लिनक्स का इंटरफेस है. अब यहाँ पे क्या होता है कि लिनक्स जनरली विंडोज़ में क्या होता है कि हमारा टास्क
हमारा टास्क बार में विंडोज़ में क्या होता है कि हमारी जो मेन्यू जैसे कैलेंडर हो गया, वाईफाई के बारे में हो गया, ये कहाँ रहता है? बॉटम ऑफ दैट स्क्रीन। ये जैसे कि यहाँ पे देखिए रेट ये यहाँ पे। बट लिनक्स में क्या है कि उसका जो कैलेंडर या फिर ये जो रहता है वाईफाई नेटवर्किंग या फिर वॉल्यूम एडजस्टमेंट का जो भी सेटिंग रहता है, वो हमें टॉप ऑफ द screen दिखता है, राइट? In this area, okay. And here is some icons are present and एक होम डायरेक्टरी रहती है, जैसे कि माई कंप्यूटर जैसा एक रहता है ना, सेम इनमें माई होम करके रहता है, जिसमें हमारे डायरेक्टरीज फोल्डर फाइल्स शो होते हैं एंड इट गिव अस वेरी path to go there, okay. एंड वन सर्च बॉक्स इज देयर, ओके। एक सर्च बॉक्स रहता है जिससे हम अपने एप्लीकेशन उसमें सर्च कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द graphical interface of graphical interface of GNU Linux, okay. So now we see what are the command line interface. सिंपल बात है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जिसमें हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, राइट? जहाँ पे हम माउस से क्लिक कर पाते हैं, दैट इज द डायरेक्टली GUI, ओके। दैट इज द ग्राफिकल, जो हम देख सकते हैं, राइट? जिसे जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज द कमांड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. Next one is the command line interface. The command line interface is when the user interact with computer using the text. This is done by typing commands into the terminal. The default CLI on the Ubuntu is 18.04, is called the bash, and it is a command processor that runs in a text window where the user type commands that causes actions. The commands are the programs that are run when user types command name. There are number of different commands that user can use. Some of the explain table number 2. Okay, I will explain that. अब देखिए क्या होता है, ये तो इंटरफेस हो गया, बट हमारा सेकंड उसमें हम किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं? कमांड लाइन से। जैसे कि मैं विंडोज़ में MS DOS से कमांड करता हूँ, वहाँ पे एक टर्मिनल रहता है, राइट? देर विल ऑल्सो देर आर सम टर्मिनल, वन टर्मिनल विंडो, इट हेल्प टू डू operations with the help of commands, okay. So एक Ubuntu 18.04 में एक उसका CLI है, दैट इज अ बैश, ओके. सो दैट यूजेस टू इंटरेक्ट विथ द सिस्टम, ओके. सो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे जैसे कि MS DOS का आपने देखा कि MS DOS मैंने DOS ओपन किया था, राइट? जैसे कि एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था. So like that there also this type of command prompt, but they said it terminal, okay. It is terminal, it is not in Linux it is in Linux it is terminal, and in Windows it is command prompt, okay. जैसे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है वैसे वहाँ पे ये रहेगा, टर्मिनल रहेगा, राइट? जिससे हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, हम डायरेक्टरीज देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे भी कुछ कमांड्स है, जैसे कि मैंने DR टाइप करके दिखाया था. सो इट शो मी वेरियस डायरेक्टरीज ऑफ माय दैट रिलेटेड C फोल्डर, C ड्राइव, ओके. सो वैसा ही उसमें भी शो करता है. सो उसके अलग कमांड्स है. अभी यहाँ पे DIR चल रहा है तो वहाँ पे भी DIR चलेगा, ऐसा नहीं है. सो दे हैव डिफरेंट कमांड्स टू रन देयर डिफरेंट प्रोग्राम्स, ओके. सो देखते हैं हम कौन कौन से कमांड्स है, ओके. सो लेट्स सी वन बाय वन. So our first command is list directory. वन मिनट, हाँ, लिस्ट डायरेक्टरी. जैसे हमारा DIR है ना, वहाँ पे लिस्ट डायरेक्टरी है, राइट? दैट इज द LS. दिस डायरेक्टरी प्रिंट्स द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरीज इन द करंट वन. अभी जो भी वहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे हमारा DIR है, जैसे DIR मैंने टाइप किया था, सो इट शोज मी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज. सो वहाँ पे भी इस तरह का ही एक डायरेक्टरी कमांड है, दैट इज द LS. इट शोज
the prints the list of the directories in the current one. Okay, pwd, that is the print working directory. प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या होता है कि प्रिंट्स द पाथ ऑफ द करंट डायरेक्टरी, जो भी हमारा करंट डायरेक्टरी पे हम वर्क कर रहे हैं, जो भी करंट डायरेक्टरी हमने सिलेक्ट की है उसका वो पाथ शो करता है pwd में, राइट. वो मी हु एम आई, ओके, इन शॉर्ट हु एम आई, वो मी प्रिंट्स द नेम ऑफ द करंट यूजर ऑन द टर्मिनल. अभी जो भी जैसे जैसे हमने ये इस कोड को यूज, इस कमांड को यूज किया, सो इट शो मी, जैसे कि देखिए अभी यूज़र क्रिएट करते हैं हम कंप्यूटर में, यूज़र क्रिएट करते हैं. सो अभी उस पर वर्क कौन कर रहा है, उस टर्मिनल पे वर्क कौन कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस कमांड थ्रू प्रोवाइड करता है. सिर्फ जान लो, ये जनरली इतना कुछ नहीं पूछते हैं, राइट. सो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए देखो, जब भी आप लिनक्स यूज़ करोगे, सो देन यू यूज दिस commands on that, so you get more clarity about these commands. Okay, iscpu, list cpu, it prints the information about your cpu on terminal. अब CPU का जो भी हमारा, जैसे कि अगर मेरा सिस्टम में अगर इंटेल का है i3 i7 प्रोसेसर है, तो उसके बारे में मेरा इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करेगा, राइट. टच इट क्रिएट्स न्यू फाइल. ओके, cd चेंज डायरेक्टरी, ये हमारे MS DOS में भी सेम है, राइट. cd चेंज डायरेक्टरी, इट कंट्रोल गोज अ डिफरेंट डायरेक्टरी, ये हमें एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में शिफ्ट होने के लिए मदद करता है, राइट. नैनो इज अ टेक्स्ट एडिटर, ये एक टेक्स्ट एडिटर है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही रहता है. सो और इसका फाइल, जब भी हम कोई भी फाइल नेम उसका स्टोर करेंगे तो डॉट एक्सटेंशन क्या रहेगा, txt, राइट. नैनो इज द टेक्स्ट एडिटर, दिस कमांड विल ओपन द file name .txt, and you can type that text into nano, and when you are done you can press Ctrl+O followed by enter to save, and Ctrl+X followed by exit to enter to exit nano. Okay, cat concatenate का मतलब होता है टू फाइल को कंबाइन करना, राइट. सो इट प्रिंट्स द कॉन्टेंट्स ऑफ द फाइल्स लिस्ट ऑन द स्क्रीन. ये क्या करता है, दो फाइल को एक लिस्ट में कॉन्केटिनेट यानी कंबाइन करके हमें शो करता है, राइट. इको बिल्ड कमांड, ये सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है, राइट. इट यूज टू डिस्प्ले लाइन ऑफ टेक्स्ट और स्ट्रिंग दैट आर पास्ड बाय द आर्गुमेंट. ओके, क्लियर, सिंपल टू क्लियर द कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, टू क्लियर द कमांड प्रॉम्प्ट, राइट. सो ये लिनक्स के कुछ कमांड्स है जिसके हेल्प से हम अपना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएंगे, राइट. कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएंगे, राइट. नेक्स्ट वन इज द GNU लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड्स. ओके, अब उसके क्या हो गए, अब जैसे कि हमने डायरेक्टरीज तो देख लिए, बट उसके एक फाइल, उसकी भी जो फाइल सिस्टम हायरार्की है. हायरार्की मतलब जैसे कि डिवाइडेशन, जैसे कि अगर मैं एक बेस रहेगा, बेस के ऊपर उसके सब पॉइंट्स रहेंगे. जैसे कि अब जब आपने हायरार्की ट्री देखा होगा, ट्री, राइट. ट्री देखा होगा, वो एक टाइप की हायरार्की है, बट जैसे कि लिस्ट टू लिस्ट रहना, यानी एक के भी नीचे एक के नीचे. जैसे कि देखो, मेमोरी में सबसे लोअर रहेगा हमारा सीपीयू की मेमोरी, राइट. दैट इज अ प्राइमरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, राइट, एंड देन एक्सटर्नल मेमोरी. सो ये क्या है, हायरार्की हो गई, राइट. सो इन GNU लिनक्स द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी. अब लिनक्स में क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होती है, हम उसे क्या कहते हैं, जो भी हमारी बेस डायरेक्टरी रहेगी, हम उसे रूट डायरेक्टरी कहेंगे, राइट. and that is written as the slash. All directories are stored under the root directory. For example, if user is abc and the home directory will be created at the home.abc. So
देखिए जैसे हमारे इसमें क्या रहता है, सी कोलोन, फिर उसके बाद स्लैश, देन फाइल नेम, जैसे कि इस टाइप में अभी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा बैक स्लैश है, उसमें फॉरवर्ड स्लैश रहता है, राइट। जैसे कि देखिए यहाँ पे सी है, तो हमारा मेरा सी जो है ये रूट, ये जो है ये रूट डायरेक्टरी हो गया, राइट। सो उसी में यहाँ पे रूट डायरेक्टरी रहेगा इस तरह से, फॉरवर्ड स्लैश होम एंड देन फाइल नेम, ओके। तो इस तरह से वो रूट डायरेक्टरी रहेगी, राइट। एवरीथिंग इज लिनक्स इज रिप्रेजेंट एज ए फाइल दैट इंक्लूड्स कैमरा, स्टोरेज डिवाइस, माइक्रोफोन, अदर डिवाइस। यहाँ पे EXE काम नहीं करती है, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे EXE वर्क नहीं करते, उनके अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अलग फाइल्स होते हैं। EXE करती है बट इन उसके जो रिलेटिव, उसका जो रिलेटेड EXE होगी उसी टाइप में ही काम करेगी, बट मोस्ट ऑफ टाइम इट नॉट टेक इन EXE। रूट डायरेक्टरी के बारे में पढ़ लेते हैं। All files and directories are stored under the directory, including all the hard drives, pen drives, CD drives. Okay, so हर इसकी एक रूट डायरेक्टरी रहेगी। हर अगर मैं कोई अगर पार्टीशन भी करता हूँ मेरे हार्ड डिस्क का, so there also one root directory. Okay, so that is the initialized by that side. Okay, forward slash, then forward bean. Essential system programs are stored here. जो भी सिस्टम फाइल्स, सिस्टम प्रोग्राम्स रहेंगे, जैसे कि मैंने वहाँ कहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़े थे लास्ट वीडियो में। सो ऑल द सिस्टम फाइल्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर फाइल्स आर स्टोर इन द बी, स्लैश देव। ऑल कनेक्टेड डिवाइस आर स्टोर हियर इंक्लूडिंग इंटरनल डिवाइसेस, टेम्परेचर सेंसर एंड बैटरीज। स्लैश देव में कौन से फाइल्स स्टोर रहेंगे, जो भी इंटरनल डिवाइसेस है, जैसे कि हम USB के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनल डिवाइसेस, जैसे कि रोम के बारे में बात कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो। और बैटरीज के बारे में बात कर सकते हैं, जो भी लैपटॉप या सिस्टम की बैटरी रहेगी उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो सब स्लैश देव में स्टोर रहेगी। स्लैश ETC सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल आर स्टोर्ड हियर। अब क्या होता है कि यहाँ पे तो हमारा बीन में तो सिस्टम फाइल्स तो स्टोर रहेगी, राइट, बट उसको जो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो सिस्टम फाइल्स की रिक्वायर्ड है वो स्लैश ETC में स्टोर रहती है, राइट। स्लैश proc files that provide the information about processor. This is the information like how much RAM is free and how fast the CPU are run. अब यहाँ पे हमारा पूरा कच्चा चिट्टा निकलता है हमारे प्रोसेसर का, हमारे हार्डवेयर्स का, राइट। यहाँ पे हम जो भी हमारे प्रोसेसर के बारे में बोल सकते हैं, रैम जो हम यूज़ कर रहे हैं, रैम के बारे में कि देख सकते हैं। देन वी सी हाउ इट, उसके रैम की मेमोरी कितना फ्री है और CPU कितना फास्ट रनिंग कर रहा है, उसका एफिशिएंसी कितना है, ये सब हम स्लैश प्रोक में देख सकते हैं। स्लैश टेम्प इट स्टोर द टेम्परेरी फाइल्स। टेम्परेरी फाइल्स जो भी होती है, अभी जब भी कोई, आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ, जिसमें अगर कोई भी कभी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, देन दैट टाइम इट क्रिएट्स मेनी मोर ऑफ टेम्परेरी फाइल्स। ओके, सो वो टेम्परेरी फाइल्स के लिए एक सेपरेट मेमोरी हमें अलोकेट, सिस्टम में अलोकेट कर देता है, राइट। सो दैट इज द temporary files and it is stored into slash tmp. Okay, slash home, it is the user home directory are stored here. मैंने आपको बोला था कि हर सिस्टम का एक होम डायरेक्टरी होता है जो हमें शो करता है हमारी होम डायरेक्टरी। ओके, होम डायरेक्टरी मतलब जैसे कि हमारा माई कंप्यूटर बोल सकते हैं, उसमें जैसे हम माई कंप्यूटर में जाते हैं वो हमारी होम डायरेक्टरी है, राइट। सो वहाँ पे हमें वो शो कर देता है। ओके, there are many more directories, this user can read more about them. Okay, okay, that is not important necessary. So in next video, student, we see why we learn use and how can we how it works in uh, our networks, JNU Linux, and see about networking. Main part is networking is here. We start in next lecture. So
Today we stop here, students. Stay safe. Goodbye.